Hello everyone, my name is Humama Naeem Khan and I'm here with you to have the paper analysis and solution discussion of class 9 slot 4 GTSC 2020. I hope आप सबने GTSC अटेम्प्ट किया होगा और सबका बहुत अच्छा गया होगा. I am wishing all the best to all of you. Since I am your physics faculty, I will be taking up the physics portion of the paper. So without wasting any further time, let us just go to the solution discussion part. Okay, on your screen is the first question, बच्चों. An object is accelerating under the influence of a force F1. Okay, on a frictionless surface. A while later, an opposing force F2 of the same magnitude acts on it as shown in the figure. Okay. First of all, बच्चों, if F1 and F2 are equal and opposite as shown in the figure, F net is going to be 0. So if net force is 0, the body is not going to accelerate. Acceleration will be equal to 0, right? Acceleration is 0 because the net force acting on the body is 0. First thing, so body is not going to accelerate. Second thing, bachcho, it is a frictionless surface. There is no friction between the body and the ground. So the body is going to move with a constant speed. Body is going to move with a constant speed because the surface is frictionless. Let us see the options. Body will slow down. Body will move at a constant velocity. Right. So answer is B. Okay. So next question is, if a glass rod is rubbed with a silk cloth, it acquires a positive charge. That is statement 1. Okay. And statement 2 is, a body acquires a positive charge when electrons are removed from it. Okay, first thing, bachcho, whenever you are going to rub a glass rod with a silk cloth, okay, so supposingly this is the glass rod and here is the silk cloth. So what happens is, glass rod as compared to the silk cloth has more tendency to lose electron. So if it loses electron, it will become positively charged. So since its tendency to lose electron is more as compared to the cloth, so statement is absolutely correct. Okay. What is statement 2? A body acquires a positive charge when electrons are removed from it. Obviously, बच्चों क्या होता है? When due to rubbing, the electrons are lost from the body loses electron. So overall charge negative वाला कम हो गया है. तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा ओवरऑल. सो बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. बॉडी अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. इसका ये मतलब नहीं किसी और से पॉजिटिव चार्ज ले लिया, नहीं, अपना ही. जब नेगेटिव आप लूज कर देते हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर बैलेंसिंग द बॉडी अर्लियर. अभी आपने नेगेटिव लूज कर दिया है तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या बचा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. सो आंसर इज ए. ओके. What is the value of sliding friction for an object of mass 700 grams which requires 7 Newton of force to move from rest? See, you just need one very important concept and clarity of concept to solve this, and that is only that बच्चों यहाँ पे लिखा है 7 Newton of force is required to move from rest. ये कौन सा ये वाला फोर्स लग रहा है? कब लग रहा है? जब ये आगे बस जस्ट स्टार्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट. सो व्हेन द बॉडी हैज जस्ट स्टार्टेड टू मूव, ये वाला कौन सा था? ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद क्या आएगा बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा. स्लाइडिंग के बाद क्या आएगा? रोलिंग आएगा, है ना. सो अभी स्टैटिक है, उसके बाद क्या आएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा. और हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग इज मोर देन रोलिंग, राइट. सो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 7 न्यूटन दी हुई है. रिक्वायर 7 न्यूटन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन को जस्ट ओवरकम करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है? 7. तो स्लाइडिंग इससे क्या होगा बच्चों? कम होगा, क्योंकि स्टैटिक स्लाइडिंग से क्या होता है? ज्यादा होता है. तो यहाँ पे स्लाइडिंग क्या होना चाहिए? कम. सो लेस देन 7 न्यूटन इज आवर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिटी वॉज प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम. A contract was to be given to the engineer who could develop the most robust and accurate design of the dam. The cross section of their plan is shown. Whose plan is more likely to get an approval? Okay. So if you can see the blue portion basically in all the three engineers is
आर वाटर. ओके, आपको डैम बनाना है. ठीक, तो इसमें सिर्फ फोर्स एंड प्रेशर का वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसमें आप क्या पढ़ते हैं बच्चों कि जब भी लिक्विड में वी गो डाउन, व्हेन वी गो डाउन इन द लिक्विड, हाइट क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है. एंड देयरफॉर एट द बॉटम pressure is maximum, right? So at the bottom pressure is maximum. तो आपको जब डैम बनाना है तो उसको बॉटम से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा टू ओवरकम दिस ह्यूज प्रेशर. सो इन द 3 एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी, यहाँ पे देखिए दिस इज क्वाइट वाइड एज कंपेयर टू दिस एंड दिस. सो द बॉटम ऑफ द डैम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रेशर सबसे ज्यादा वहीं होता है. सो इंजीनियर ए इज करेक्ट, आंसर शुड बी ए. Okay, in the following figure, 2 copper rods kept in a beaker containing sulfuric acid are moved further apart from each other. Okay, here there is sulfuric acid as an electrolyte, and then there are 2 copper rods. Obviously, one is attached to the positive terminal of the battery and another is to the negative terminal. In the question it is given, what if we will move these 2 rods away from each other? बच्चों, if these are the 2 rods that we are going to move away from each other, हम इनको दूर दूर करेंगे. ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा. इफ द सेपरेशन विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस काय के लिए, ये जो आयंस फ्लो होते हैं ना एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए, उनको टाइम ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डिपॉजिशन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेपरेशन इट हैज टू ट्रैवल अ वाइडर डिस्टेंस, अ लॉन्गर डिस्टेंस. उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका डिपॉजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिट. और सिमिलरली अगर जस्ट ऑपोजिट कर दिया, पास पास लेकर आ गए, तो मोर कॉपर विल बी डिपॉजिटेड. ओके, आंसर इज ए. Okay, next question. The distance between 2 consecutive crests in a wave produced in a string is 5 centimeter. बेटा 2 consecutive crests से हम क्या समझते हैं? Here is the wave that I'm drawing. Okay, like this. This is the first crest. This is the second crest. So the consecutive crests are 5 centimeter apart, and consecutive crests हम क्या समझते हैं? This is the wavelength. Okay, distance between any 2 consecutive crest or the consecutive trough is known as wavelength. ये कितनी है बच्चों? 5 centimeter. Okay, if 2 complete waves pass through any point per second, wave passing through per second is nothing but frequency. और 2 वेव्स पास कर रही हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 हर्ट्ज. ओके, नाउ दे आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी. ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं, लैम्डा इनटू एफ. व्हाई? क्योंकि बच्चों टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड. तो जहां टी लिखा था उसकी जगह 1/f लिख देंगे, तो f कहाँ चला जाएगा, ऊपर. ओके, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 5 into 2, so that is 10 centimeter per second. Answer should be A. Okay, A. So this was all from physics. Now let us move to our next section, that is chemistry. हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. अभी आप सब लोगों का जीटीएससी का पेपर होके चुका है एंड आई एम श्योर वो बहुत ही अच्छा रहा होगा. सो आई द केमिस्ट्री टीचर हियर एट गोप्र आकांक्षा खंडेलवाल इज ब्रिंगिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है, जो आपके जीटीएससी में पेपर आया था बच्चा. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड वाज दिस वन. अ फ्यू सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट. इसमें यहाँ पे की वर्ड है बच्चा का व्हाइट प्रेसिपिटेट, किस केस में बनेगा. सो आपका बेसिकली आप AgNO3 के अंदर ऐसे क्या चीज डाल रहे हैं जिससे व्हाइट प्रेसिपिटेट बने. प्लीज रिमेंबर इट्स ऑलवेज AgCl. AgCl जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वाज ऑप्शन 2, क्लोराइड आयंस यू वर एडेड. ठीक है, तभी आपका AgCl बन पाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट मैग्नीशियम. सो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं? इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द रीजन इज इफ यू लुक कंपेयर द सेकंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट, तो या तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा. विद वाटर योर मैग्नीशियम फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड एंड नॉट ऑक्साइड. ठीक है, एंड मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल इज ऑब्वियसली malleable and ductile. So the incorrect statement or the correct answer for this question is your option B, second वाला. ठीक है, ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड बनता है.
The next is there is no reaction when silver is added to copper sulfate. Again a very simple question, क्योंकि अगर आप सबको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा है मेटल्स के, सिल्वर कॉपर के नीचे आता है, सो सिल्वर लेस पावरफुल है, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. The next was आपका oxides of nitrogen and sulfur combine with fog. So basically these are pollutants. तो smoke के साथ ये combine करते हैं fog के साथ to form a new thing that is your smog, which is a major harmful pollutant. जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन सबको पता है what is smog. They have usually encountered it a lot. The next is आपके पास ये displacement reaction है, तो किस ये वाला reaction कहाँ पे possible है? It's a single displacement reaction that they are talking about. ठीक है, एंड कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर, सो इजिली कॉपर वुड एबल बी किक आउट सिल्वर फ्रॉम हियर. एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब केसेस में आपके क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स इस तरफ प्रेजेंट है, एंड दीज इन दीज थ्री केसेस यू हैव गॉट लेसर रिएक्टिव मेटल्स, सो द रिएक्शन वोंट टेक प्लेस. फाइन. सो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट केस इज पॉसिबल, सो द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए फॉर दिस. The next question was the hottest region of Bunsen flame. Very simple question जो आप लोगों ने कर रखा है अपने स्टैंडर्ड में. That is the tip of this inner tip जो होती है आपके पास blue flame की जो tip है वो hottest region होती है. That is region 2 is the hottest, right? So the correct answer is option D for this. The last question that you had in the chemistry section was this: phosphorus को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है? हम लोग केमिस्ट्री लैब में phosphorus को एक ही तरीके से टेस्ट करते हैं, एंड दैट इज थ्रू ऑप्शन सी. हम बॉयल करते हैं उसे नाइट्रिक एसिड के साथ एंड अमोनियम बॉलेट डालते, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी. आई होप आप सभी का ये वाला पेपर बहुत ही अमेजिंग रहा होगा. नाउ वील बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू. हेलो एवरीवन, आई होप आपका जीटीएससी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ एंड यू लाइक द क्वेश्चन टू, and you all must be curious about to know the answer of various questions. So let us start discussing the biology part. So the first question in the biology part was, in human beings after fertilization the structure which gets embedded in the wall of the uterus. So if we talk about the steps in the reproduction, the first step is that the gametes, the male and the female gamete, they will undergo the process of the fusion, which is known as fertilization, leading to the formation of a single cell diploid structure called as zygote. ठीक है, इसके पास मेल गमीट के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, फीमेल गमीट के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम था. दे बोथ अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. इनका फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट. ये जो जाइगोट होता है, इट अंडरगो द सेल डिवीजन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. दिस एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड, जो यूट्रस होता है उसकी वॉल पे जाके इम्प्लांट हो जाता है. सो द स्ट्रक्चर विच गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज द एम्ब्रियो. सो द करेक्ट आंसर इज एम्ब्रियो. ओके, जाइगोट इज द सिंगल सेल विच फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फीटस जो है अपना बेबी है, ठीक है. ओवम इज अ फीमेल सेक्स सेल. एम्ब्रियो जो हो गया वो जाइगोट विल अंडरगो सेल डिवीजन, एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बना जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. Moving to the next question, the covering that is present outside the genetic material is called as. Let us see a simple structure. Let us understand this with a simple structure. Suppose if we talk about virus का structure ऐसा रहता है, just very simple. If they have genetic material, it means they have nucleic acid. इस न्यूक्लिक एसिड को कवर करने के लिए एक प्रोटीन की कवरिंग होती है. Hence we say that viruses are made up of nucleoprotein. न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का बना है. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैप्सिड. ठीक है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैप्सिड. एंड ये कैप्सिड का रोल क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द जेनेटिक मटेरियल. सो द करेक्ट आंसर इज कैप्सिड. Moving to the next question, the question is saying what is the correct path. ठीक है. So if we talk about the pituitary gland will release some hormone. ठीक है, let us call it as gonad stimulating hormone. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? कुछ हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं. ठीक है, ये जो हार्मोन है क्या होगा, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा. ठीक है,
this will travel to the bloodstream where it will affect the ovaries and testosterone. How? It will allow ovary to release estrogen and it will allow testis to release testosterone. ठीक है, जिसकी वजह से मेल में मेलनेस वाले करेक्टर आते हैं और फीमेल में फीमेलनेस वाले करेक्टर आते हैं. हेंस वी कॉल देम एज सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, इज इट क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं. ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेगा, ठीक है, जो कि अफेक्ट करेगा किसको? हमारे गोनाड्स को, बिकॉज द नेम इज गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो इट इज द हार्मोन विच स्टिमुलेट द गोनाड्स. तो गोनाड्स क्या हो गए? ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल. Okay, which allow the ovaries to release estrogen and testes to release testosterone, and it is responsible for the changes in the human body. So the correct answer is D. Example of weedicide, but weedicides are chemical which is used to remove or kill, which is used to kill the unwanted plant, weeds को basically. तो इस कौन है इसमें से? 2,4-D is a weedicide. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन स्टैंड्स फॉर. सो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, सो क्रोमैटिन स्टैंड फॉर डीएनए प्लस प्रोटीन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज मूवमेंट इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया हैव अ टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्लैजिला बोला जाता है. सो दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट इन द बैक्टीरिया. सो द करेक्ट आंसर इज फ्लैजिला. If we destroy cell membrane, the cell will die. Cell membrane protects the cell from exchange in external. Yes, cell membrane is semi-permeable in nature. ठीक है, if we talk about cell membrane, it is semi-permeable in nature. ठीक है, तो इट विल अलाउ किसको अंदर जाना है और किसकी एंट्री पे बैन लगाना है. सो अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया तो एनीथिंग कैन एंटर इनटू द सेल, दैट्स व्हाई सेल में डाई. सो द असर्शन इज true and reason is also true and the reason explains the assertion very well. So I hope you liked the question and you found them interesting too. Good luck. हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैथ्स का पेपर किस प्रकार से हुआ आप सभी का GTSC का? आई होप कि सभी बच्चों फोड़ के आए हैं सभी अच्छे पेपर्स में. तो देखते हैं यार क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है कि 30184 को किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो क्या सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना. प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, एक एक उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे. तो चलो आप बताओ, आप सभी ने इसको प्राइमली फैक्टराइज किया होगा. पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे. देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है. 8 से डिवाइड देखने का क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो मेरे को तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन याद है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर मैं गलत नहीं हूं तो. ठीक है, 2 आता है 3 बार और 7 आता है 3 बार. ठीक है, तो 2 3 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है. तो ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 11 अड़ंगा डाल रहा है. अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब होगा. तो 11 इज द आंसर. 11 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं. ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब चाहिए क्या, ये फॉर्मूला क्या है यार, इसका प्रूफ डेरिवेशन आराम से पढ़ना, मैंने कराया भी है. अगर आप लाइंस ऑफ एंगल्स वाली क्लास देखें, लाइंस एंड एंगल्स वाली, तो रेगुलर पॉलीगन में मैंने कराया हुआ है काफ़ी कुछ. तो नंबर ऑफ साइड हमेशा क्या होता है 360 डिग्री बाई कोई भी एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल अगर हम देखें तो 40 डिग्री है हमारा. तो 9 आ जाएगा यार, है ना. 9 इज द आंसर जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं. यहाँ पे हमें एंगल्स दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? हमें एंगल्स दिए हुए हैं और हमें बात की हुई एक्स निकालना है हमें. चलो निकालते हैं भाई. एक अपना ये एक्स कैसे निकालेंगे इस एक्स को. ठीक है, तो KRLU पूरा हमारे एक कोऑर्डिनेटर है E. अच्छा बोले रिस्क और क्ल्यू हमारे पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है तो हम फोड़ के आएंगे इसे, है ना. हमें पता है SKR प्लस ISK वो 180 डिग्री होगा रिस्क में. ठीक है, तो ISK यहाँ से निकल जाएगा हमारा, है ना. ISK बड़े आराम से निकल जाएगा यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें. SKR प्लस ISK पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. तो ISK अगर हम बोलें तो ये 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ से. सही बात है कि नहीं है? 180 माइनस 120 डिग्री.
इन दोनों का सम 180 होगा ना यार, ठीक है। फिर अपने हाँ ये आ गया, हमें x निकालना है। फिर क्लू वाले पैरेललोग्राम में आ जाते हैं। क्लू वाले पैरेललोग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पर क्लू वाले पैरेललोग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एंगल UEC और एंगल ULC ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो वो भी 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से इसे लिखना चाहें इस एंगल को, तो ये हमारा 70 डिग्री होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। क्लू पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जी। तो अब इस छोटे से ट्रायंगल को जरा बड़ा कर लो यार, मैंने क्या तो बड़ा किया है, और ज्यादा बड़ा कर लो। यहाँ पर 60 + 70 + x, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इन तीनों का सम 180 होगा, तो x क्या आ जाएगा, 180 - 130 मतलब 50 आ रहा है यार। देखो देखो आंसर क्या है, 50 है यार, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के ऊपर। अच्छा ये कुछ बोल दिया, रेशियो जब भी दिया हो, एक 3x है एक एंगल, एक 7x है, एक 6x है, एक 4x है, ठीक है। अब बोला है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है। इस तरह से रेशियो ऑफ एंगल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एंगल्स हम लोगों को दिए हुए हैं और हमें उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो सारे एंगल्स का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो सबको जोड़ो, इन्हें 3 × 7 = 10 और 6 और 4 = 10, 20x क्या होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, अगर हम देखें 18 डिग्री आ रहा है ना आई थिंक, तो एक एंगल 18 आ गया, तो एंगल A क्या आ जाएगा 54, एंगल B क्या आ जाएगा 126, ठीक है 7x, एंगल C क्या आ जाएगा 108, एंगल D क्या आ जाएगा 72। अरे बहुत ही कातिल बात हो रही है यहाँ पे, एंगल A + एंगल B इन दोनों का सम हो रहा है 180 और एंगल C + एंगल D इन दोनों का सम भी 180 हो रहा है, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब ये ट्रेपीजियम नजर आ रहा है भाई हमें। यहाँ पे अगर हम देखें BC पैरेलल टू AD हो रहा है, ठीक है। ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, ट्रेपीजियम नजर आ रहा है भाई ये हमें, है ना। ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना। सिंस एंगल्स ऑन द सेम साइड्स आर ट्रांसवर्स एंड सप्लीमेंट्री, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल है वो ट्रेपीजियम है इसका आंसर जी। तो ये तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री उनका सम आ रहा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन। एक गार्डनर है, वो 1000 प्लांट लगाता है, चलो ठीक है। ही प्लांट इन सच अ वे सच दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। अच्छा जी, मतलब 1000 प्लांट लगाता है इस तरीके से कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर फॉर दिस। अच्छा इसको देख रहे हो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, n इंटू n स्क्वायर। अब 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन सी मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इसे परफेक्ट स्क्वायर। क्या किसी को 2 की पावर 10 याद है ना। 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है। तो 1000 के पास सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1024। तो उसे 24 प्लांट्स और लगाने पड़ेंगे, 24 प्लांट्स और लगाने पड़ेंगे, 1000 + 24, तो 1024, तब जाके ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 की पावर क्या आएगा, आई थिंक 5 आएगा, ठीक है। 32 रो और 32 कॉलम होंगे उसमें, है ना। तो 24 इज द आंसर। आप इसे लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 की पावर x -1 प्लस 2 की पावर x इज 2560, ये है हमारा। अगर हम इसे देखें यार, x -1 पावर में होना चाहिए, ठीक है। ये x -1 कहाँ है, पावर में है, ठीक है। ये पीपीटी में थोड़ा सा गलत मेंशन है यहाँ पे। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें 2 की पावर x -1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर तो 1 ही बचेगा और यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा, ये क्या हो जाएगा 2560, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 2 की पावर x -1 इंटू 5 = 2560, इसको कैंसिल करो, 5 × 5 = 25, है ना। और ये हो जाएगा 512 हो जाएगा ना, ये हमारा 512 जी। तो 512 2 की पावर x -1 512 1024 अभी हमने पढ़ा था 2 की पावर 10 होता है, तो 2 की पावर 9 होता है 1024 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x -1 हमारा 9 आ गया, x हमारा 10 आ गया, यही वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है।
ये ध्यान रखा है ना यार, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है 2 की पावर x माइनस जी, ये आ रहा है ना आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है यार, LBH, वो क्या दे रखा है 3x, यार यहाँ पे x क्यूब होना चाहिए है ना, आई थिंक ये x क्यूब होना चाहिए या x स्क्वायर होना चाहिए, अच्छा x स्क्वायर है तो भी चल जाएगा यार, एक कांस्टेंट हो जाएगा है ना, हाँ तब भी तो हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 27, 3 कॉमन ले लिया, हो गया x स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, LBH, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये है ना C है ना यार, C इज द आंसर, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, हमें फैक्टराइज किया ऐसे, नथिंग एल्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक व्हील है, उसका कुछ डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 90, रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी 45, ठीक है 45 सेंटीमीटर, जो 31 रिवॉल्यूशन पर मिनट करता है, डिटरमाइन इट्स स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है और हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है, तो हमें डायमेंशंस का बड़ा ध्यान रखना होता है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें डायमेंशंस का बड़ा ध्यान रखना है। तो डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 90 सेंटीमीटर, अब यहाँ से पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr, तो 22/70 मीटर इंटू 2r इज 90, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, अगर हम देखें रिवॉल्यूशन कवर्ड पेरीमीटर ऑफ अ व्हील, ठीक है, दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ अ व्हील, ठीक है, यही हो जाएगा ना यार, पेरीमीटर बोल दो, सरकमफ्रेंस बोल दो, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ये हमने लिख लिया। अब ये बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन 315 रिवॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, रिवॉल्यूशन कवर्ड इन 1 मिनट बोला है हमें, ठीक है 315 है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 315 रिवॉल्यूशन क्या होगा, जो हमने सरकमफ्रेंस निकाला है, ठीक है, ये जो सरकमफ्रेंस निकाला है 22/7/90 इंटू 315, ठीक है, क्या ये जा रहा है 7 चौक 28 है ना, हाँ जा तो रहा है 7 पंचे 35 है ना, 45 ये जा रहा है जी। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 89100 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 89100, कितने में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमें किलोमीटर वगैरह में निकालना है, तो इसे किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे, ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो हमें इसे सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.819 किलोमीटर, ठीक है, ये आएगा 0.891 किलोमीटर, तो ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ये क्या है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ये 1 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड है, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितने डिस्टेंस होगा, 60 इंटू 0.891, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन कर दी मैंने तुम्हारे, 53.4 आ जाएगा यहाँ से, 53.4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ये लंबा क्वेश्चन हो गया यार थोड़ा सा है ना, कैलकुलेशन लंबी है, वैसे तो कंसेप्ट तो इतना वो नहीं है। अब यहाँ पे हमें AC और BC क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, AC और BC की वैल्यू इक्वल दे रखी है और हमें एंगल BAC निकालना है, सोचो कैसे करेंगे, AC और BC इक्वल है, एंगल ABC और एंगल BAC भी इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और एंगल AC भी यहाँ पे 90 होगा बिकॉज सेमी सर्कल में एंगल है, ठीक है, एंगल ACB हमारा यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा, सही बात है कि नहीं है, समझ में आ रहा है जी। और क्या होगा, और अगर हम देखें ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा इंडिविजुअल एंगल, ये थीटा है ये थीटा है, तो इन तीनों का जो सम है वो तो 180 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 90/2 मतलब 45 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 45 आ गई, यही तो निकालना है यार हमें, यही तो निकालना है, एंगल BAC की वैल्यू 45 है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज्ड, एक नंबर मान लिया वो नंबर क्या है x है, ठीक है, मैं थोड़ा गायब होके आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक नंबर मान लिया वो क्या है हमारा x है, ठीक है, उसका जो फिफ्थ पार्ट है उसे 5 से इंक्रीज किया गया, ठीक है, और
उसके फोर्थ पार्ट में 5 डिक्रीज कर दे तो वो इक्वल होंगे, ठीक है, फोर्थ पार्ट में 5 डिक्रीज कर दे तो वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक x 200 आ जाएगा यहाँ से, आप है ना, कैलकुलेशन है x/5 माइनस x/4, x/4 माइनस x/5 करो इक्वल टू 10, तो ये सिंपल 200 आ जाएगा यार, है ना, 20 × 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो वो हमारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। 16 × 4, यार मुझे कुछ बताना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप इसे कैलकुलेशन वाइज सॉल्व कीजिएगा तो 64 ऊपर तो समझ में आ रहा है भाई, 6561 आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमें सिंपल ऊपर से ही पता लग रहा है कि यार 65 61 तो नहीं होगा। अगर आप एक इंटेलिजेंट गेस भी लेना चाहो तो आप ऐसे इस गेस को ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अपना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है f = v = 5, फेसेस और वर्टिसेस हमें 5 दे रखे हैं। क्या ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने क्या पढ़ रखा है, f + v - e, वो क्या होता है, वो 5 होता, वो क्या होता है 2 के इक्वल होता है। किसी भी हमारे सॉलिड शेप में, किसी भी पॉलीहेड्रॉन में वो इस तरह से होता है। क्या ये सभी बच्चों को पता है जी। तो यहाँ पर अब यहाँ पे हमें अगर हम ध्यान से देखें, हमें फेसेस दे रखे हैं 5, वर्टिसेस दे रखे हैं 5, तो हम एजेस निकाल सकते हैं। अगर एजेस कैलकुलेट करें तो 10 - 2 हो जाएगा हमारा 8। देखें यार एक बार आंसर देखें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, इफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, ये 5 यूनिट्स है। देन पॉइंट P हैज, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट, सॉरी तो हम कुछ नहीं कह सकते वो क्या है, ये डिस्टेंस नहीं पता, बट ये डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता है। तो ये y कोऑर्डिनेट आपका 5 भी हो सकता है, 0,5, और नीचे से भी तो आ सकता है वो 5 डिस्टेंस, तब भी यहाँ पे फुट ऑफ वो -5 भी हो सकता है। मेरी ख्याल से तो ये आंसर होना चाहिए, देखते हैं डी आंसर है यार, है ना, ठीक है, वो नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। वैसे तो अगर वो या इस तरफ भी होता ना तो भी यही आंसर होता, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो भी यही आंसर होता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द नंबर डिक्रीज्ड बाय 30%, x में से 30% घटा दिया, मतलब 30x/100 घटा दिया तो 84 आ गया, ठीक है। तो हमें x - 3/10 मतलब 7x/10 = 84 कैलकुलेट कर देते हैं, 12x 120 आ जाना चाहिए यार। देखिए आंसर, कैलकुलेशन है सिर्फ 30%, तो मतलब 30%, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस तरह की क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों ने पक्का किए हुए हैं, ठीक है। A कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, B कैन फिनिश इन 15 आवर्स, दोनों साथ में करेंगे तो कितने टाइम में कर लेंगे। तो वर्क डन ऑफ बाय A इन 1 आवर इज 1/12, वर्क डन बाय B इन 1 आवर इज 1/5, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन को। A का 1 घंटे का काम कितना है, ठीक है, वर्क डन इन 1 आवर, ठीक है, A का वो है 1/12, B का 1 घंटे का काम कितना है 1/15, ठीक है। दोनों का A एंड B का 1 घंटे का काम कितना होगा 1/12 + 1/15, ठीक है। 1/12 + 1/15 करा तो ये क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 3/20 आ जाना चाहिए। तो दोनों के दोनों उस काम को कितने में कर देंगे, उसे उल्टा कर दो, 20/3 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो 20/3 को इतना हो जाएगा 6 सही 2/3 घंटे, ठीक है ना। ये इसे आप ऐसे लिख सकते हो, है ना यार, 18/3 + 2/3 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से 6 घंटे 2/3 घंटे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अरे यार इसका पहले हटा देते हैं। 324 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो 324 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, या आपने ये काम आपका है, आपको इसे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मेरे को तो याद है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 आता है हमारा 4 बार, 2 आता है 2 बार, ठीक है। 324 में 3 आता है हमारा 4 बार और 2 आता है 2 बार। अब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो यार ये तो ठीक है, ये 3 बार आना चाहिए। अब किस किस की कमी है यहाँ पे,
एक तो 2 की कमी है और 2 3 की कमी है, सही बात है। तो 9 दूनी 18 की कमी है यहाँ पे, 9 2 जा 18 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है जी। डी आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये तो पूरी कैलकुलेशन है यार ये। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन हमारा ठीक से नहीं लिखा, ये क्यूब है यहाँ पे, है ना, ये क्यूब है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में क्या है, क्यूब है यहाँ पे। तो इस क्यूब को सॉल्व करना है हमें, तो पहले तो सिर्फ 4 + 3 7/4 का क्यूब सॉल्व कर लो, फिर उसके आगे सॉल्व करोगे, सही बात है कि नहीं है। पहले 7/4 का क्यूब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो ये सिंपल 343/64 आ जाएगा, ठीक है, 343/64। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, f1 मतलब x की जगह 1 पुट कर दो, f1 क्या होगा 1 - 2 - 1, यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ यार, और तो कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। +2 + 1 ये f1 होगा, इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया f1, ये आ गया 1, f0 पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, f0 भी 1 आ गया, देखो 1 - 1 यहाँ तक 0 आ गया, सिर्फ ये आंसर है डायरेक्टली 2 × f - 1, ठीक है, ये निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। f - 1 यहाँ पे -1 पुट कर दो, x की जगह -1 पुट कर दो, चलो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन, कोई गलती ना हो। +2 -1 -2 +1, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, -1 आ रहा है, ये है ना f ऑफ -1 की वैल्यू, तो 2 × f ऑफ -1 इज -2। एक बार देखते मेरी कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले इसे देखा, 24, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है ना, XYZ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, x यहाँ से बच रहा है, y यहाँ से बच रहा है, z यहाँ से बच रहा है, इसे यार 8XYZ से, इससे आसान क्वेश्चन क्या देंगे यार, इससे आसान क्वेश्चन तो क्या देंगे ये लोग, है ना। C इज द आंसर। ओके यार, तो GTSC तुम फोड़ के आए होगे, पक्का विश्वास है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप अच्छा परफॉर्म करके आए होगे। अच्छा ये बताओ, x + 1/x का स्क्वायर क्या होता है, होता है x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, 2ab 2 होता है। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं 2 को इधर माइनस कर दूंगा, तो इसके स्क्वायर में से तो सिंपल 5² - 2 23 मस्ट बी द आंसर। लड्डू क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, लड्डू क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हमने इवन यहाँ पे यूट्यूब में क्लासेस में भी किया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Hey guys, welcome back, and this is me Avi Arora, your maths teacher, and today I'm here to discuss the aptitude section that of GTSC slot 4. So I hope सभी का GTSC slot 4 अच्छा गया होगा, जरूर बताना मुझे comments में। And let's have a look at all the questions that were there in your slot 4 aptitude exam. तो first question क्या बोल रहा है कि one of the number is missing, choose that missing number. तो 18 में हमको क्या हमने 6 ऐड करना है, 18 में हमने +6 किया, फिर हमने -3 किया, फिर हमने +6 करना है, फिर -3 करना है, 27 - 3 कितना हो जाएगा 24। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ड्स आर गिवन, अच्छा ठीक है, ऑड वन आउट है ना, देखो सर्कल क्या है, कर्व्ड है, एलिप्स कर्व्ड है, स्फीयर कर्व्ड है, क्यूब एक इकलौता है जिसके अंदर कर्व्ड लाइंस नहीं है, इसमें फेसेस है। नेक्स्ट 15 सितंबर 2001 में क्या होगा अगर फ्राइडे है 15 सितंबर 2000 में, तो बिल्कुल 365 डेज बाद की बात कर रहा है। 365 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, ऑड डेज चेक करेंगे, देयर इज जस्ट वन ऑड डे, मतलब कि नेक्स्ट जो डे है वही हमारा 15 सितंबर पड़ जाएगा। तो क्या होगा, फ्राइडे के बाद कौन आएगा बच्चों, सैटरडे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, इफ द डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेस, न्यू नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर। तो अब जो नंबर आया वो किससे डिविजिबल होगा, देखो लेट्स से नंबर है 10a + b, लेट्स से 10th डिजिट इज a और 1st डिजिट है b। अब अगर इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो उससे क्या बन जाएगा, अब a की जगह b है और b की जगह a, ऐड करो, यहाँ पर आया a + b और यहाँ पर आएगा ये 10 टाइम्स a + b, पूरे में a + b कॉमन ले लो, वैल्यू आ गई 10 + 1 दैट इज 11, तो ये 11 से डिविजिबल है, d इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द गिवन, ठीक है, आपको क्या करना है, ये नंबर निकालना है। तो पैटर्न देखो, पैटर्न क्या आ रहा है, 15 × 6, 15 × 4 करते हैं, 15 × 4 60, 60 × 6 360, 360/10 36, 6 × 7 42, 42 × 5 210, डिवाइड बाय 10 21,
50 into 10 500 into 10 5000 डिवाइड बाय 10 500 सी आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। 4 डिफरेंट पोजीशंस है और ऑपोजिट टू फेस ऑपोजिट टू हमें किसके बताना है 6 के। तो यार 6 किसके है 2 और 4 के ऊपर है, तो मतलब 2 और 4 के नीचे वाला नंबर पता लग जाए तो पता लग जाएगा। तो अगर 2 और 4 ये रहा फिर से तो डेफिनेटली उनके ऑपोजिट वाला नंबर क्या हो गया 1। Next question, in the given series, how many times 9 is preceded by 6 and 6 again by 9? That means हमको 9 6 9 चाहिए, वो exactly once आखिरी में आता है, इसका आंसर हो जाएगा B1। अब वो कह रहा है इसमें हमने पहले एक फोल्ड किया फिर एक और फोल्ड किया और ये वाला हमने ये वाले इसने छेद कर दिए। तो अगर आप देखो तो इसको ओपन करने पे तो ये डायगनली हर जगह आएगा, तो ऐसा एक फिगर यहाँ आएगा और ऐसा ही एक फिगर यहाँ आएगा और ऐसा ही एक फिगर हमें यहाँ मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमें ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। 4th इज द राइट आंसर। इन द रो ऑफ गर्ल्स शीतल लेफ्ट से 10th है और हीना 9th से राइट है। इंटरचेंज कर दिया तो अभी शीतल 9th पहुंच गई राइट से और लेफ्ट से 15 है, तो हमें कितना नंबर मिल जाएगा 15 + 9 - 1 दैट इज 23। बी आ जाएगा इसका आंसर। A boy started from his home after walking for 5 kilometers towards east, तो ये गया 5 towards east। फिर क्या किया इसने, फिर इसने राइट टर्न ले लिया 8 किलोमीटर्स। फिर इसने क्या किया, इसने 10 चला गया, मतलब कि कुछ यहाँ आ गया ये 10 आ जाएगा। एक बार के लिए अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स आ गए। तो अभी डायरेक्शन किस तरफ है, अभी इसकी डायरेक्शन है तो साउथ की तरफ एंड वेस्ट में, साउथ वेस्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, so that's all in the math section and in the aptitude section, so that's all, see you next time, bye bye everyone, take care and मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चों को पेपर कैसे गया। आई होप सभी का ढंग से गया होगा। so see you in the next class, bye।